सदस्य देशों का समर्थन। भारत ने कहा 370 पूरी तरह से आंतरिक मामला। पाकिस्तान पर लगाया जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की भूटान यात्रा पर होंगे रवाना। भूटान नरेश से करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की होगी बातचीत। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। पीएम ने सार्थक वार्ता की जताई उम्मीद। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। सरकारी दफ्तर खुले। प्रशासन ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने का किया ऐलान। सोमवार से खुलेंगे स्कूल। कर्नाटक और केरल में हालात में सुधार के बावजूद देश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके प्रभावित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पीएम से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी दी। और क्रिकेट में रवि शास्त्री फिर से बने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मत फैसले से की नियुक्ति। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान हर बार की तरह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे एक बार फिर अटक गए। अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान इस मामले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र पहुंचा, लेकिन इस बार भी उसका दांव उल्टा पड़ गया। यूएनएससी में चर्चा को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है। Our national position was and remains that matters related to Article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India. These have no external ramifications. The recent decisions taken by the Government of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, socio-economic development is enhanced for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh. सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत किसी भी मसले का द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल चाहता है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। That terrorism is being fueled, language and incendiary talk of jihad is being mentioned by people who should know better. All of you are understanding of the situation here. I do not need to tell you what was the outcome of the closed consultations. You will yourself know about it. We stand ready to continue our efforts towards peaceful resolution of all issues in an atmosphere free of terror and violence. सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा है। India remains committed to ensure that the situation there remains calm and peaceful. We are committed to all the agreements that we have signed on this issue. We note that there were some who tried to project an alarmist approach to the situation, which is far from the ground realities. Of particular concern is that one state is using terminology of jihad against and promoting violence in India, including by their leaders. Friends, violence is no solution to the problems that all of us face. And inconsistent with our previous position that all issues between India and Pakistan, as well as India and any other country, will be resolved bilaterally, peacefully, and in a manner that behoves normal interstate relations between
countries. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से समर्थन मिला है। Secretary of the Union Territory of Jammu and Kashmir announced a whole set of measures that the government is undertaking to move towards normalcy. We are gratified that the Security Council, in its close consultations, appreciated these efforts, acknowledged them, and indicated that this is the direction in which they would like the international community to move. We are committed to gradually removing all restrictions. और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि धारा 370 को हटाने का फैसला देश का आंतरिक मामला है और कई देशों का इस पर समर्थन है। जहां तक कल यूएनएससी की बात है तो पाकिस्तान की चाल एक बार फिर नाकाम हुई है। क्या रहा पूरा मसला? देखिए नदीम, पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको दिखाते हुए चीन ने इस मसले को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने का प्रयास किया था। लेकिन पहली बात की जो बाकी सदस्य थे वो इस बारे में बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं थे और यहाँ तक कि रूस के जो वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये तक कहा चर्चा से पहले कि ये एक द्विपक्षीय मसला है और भारत और पाकिस्तान को अपने सभी जो मसले हैं, जो भी विवाद है, जो भी मतभेद है, उन्हें द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाना चाहिए और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई हस्तक्षेप रिक्वायर्ड नहीं है। इसी दरमियान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी फोन किया और वहां भी उन्होंने अपनी गुहार लगाई। तो वहां पर भी जो अमेरिकी प्रेस रिलीज आई व्हाइट हाउस से, उसमें यही कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बताया कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। यहाँ पर ये बात बतानी ज्यादा जरूरी है नदीम की हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में सईद अकबरुद्दीन, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है और भारत इसके लिए हमेशा तैयार भी है, लेकिन ये बातचीत टेरर जब चल रहा है, जब आतंकवाद बार बार फैलाया जा रहा है पाकिस्तान से, ऐसे हालात में बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता और इसीलिए भारत और पाकिस्तान बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक 370 की बात रही तो उससे जुड़ा हर एक मसला भारतीय संविधान के तहत निर्धारित किया गया है। भारत को सभी प्रकार के अधिकार है और ये भारत का विशेषाधिकार है कि अपनी सरजमीन में वो किस तरीके का कानून बनाता है और कौन से कानून वो लाता है। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने कहा कि भारत ने स्पष्ट पहले भी कई बार किया हुआ है कि बातचीत हो सकती है लेकिन बंदूक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो ऐसे में जैसे कल अकबरुद्दीन ने रात में यूएनएससी की मीटिंग के बाद कहा कि बातचीत के लिए तैयार है लेकिन पहले पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना होगा, तो इस मामले में अब अगला रुख भारत की तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, भारत की तरफ से इस मामले में हमेशा एक स्पष्ट राय रही है भारत की कि जब भी पाकिस्तान आतंकवाद का साया छोड़ के बातचीत करेगा तो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। दो नेबरिंग मुल्क हैं और दो नेबरिंग मुल्क जब एक साथ दो पड़ोसी देश होते हैं तो उसमें विवादों का होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि दोनों देशों के बीच में विवाद हो और काफी लंबा इतिहास रहा भारत पाकिस्तान का और उन विवादों को साथ बैठ के बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। ये भारत की राय है, लेकिन ये बातचीत के लिए एक सही माहौल का होना बहुत जरूरी है और भारत में लगातार दुनिया के तमाम देश भी अब इस बात भारत की इस बात से को मानने लगे हैं कि पाकिस्तान प्रचारित जो आतंकवाद है वो एक बहुत बड़ा रोड़ा है इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कबूला है अभी हाल के साक्षात्कार में कि पाकिस्तान में अभी भी 30 से 40 हजार जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि जो दशकों से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री ने जो तैयार किए हुए आतंकवादियों को, उनका समूह अभी भी पाकिस्तान और उनकी सरजमी के आसपास है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अलग थलग सा पड़ता हुआ जा रहा है और भारतीय जो कूटनीतिक पक्ष है वो काफी मजबूती से उसने पाकिस्तान की इस नकाब को हटाया है और दुनिया के तमाम देशों को समझाया है कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के हर एक जो मुद्दे हैं उसके जड़ में पाकिस्तान द्वारा प्रचारित और प्रसारित आतंकवाद ही एक मूल कारण है। जी अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे प्रधानमंत्री के भूटान दौरे की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान की यात्रा पर जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम के इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शिक्षा जैसे क्षेत्रों के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। वहीं इस दौरान बिजली और अंतरिक्ष संबंधों को भी नई ऊंचाई मिलने की संभावना है। यात्रा से पहले अपने बयान में पीएम ने दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता की उम्मीद जताई है। पीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यात्रा पुरानी दोस्ती को और मजबूत करेगी। मई 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने के बाद अपनी तीसरी विदेश यात्रा पर पीएम मोदी भूटान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 17 अगस्त को भूटान पहुंच वहां के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। वे अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत भूटान में कई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे रहा है। ऐसी ही एक परियोजना मांगदेशु की है, जो पनबिजली परियोजना है और ये ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर अहम है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। During the Prime Minister's visit, we will be launching a stamp marking 50 years of hydropower cooperation between India and Bhutan, beginning from Chukka, Tala, Kurichu, and now Mangdechu, and going forward, looking forward to the Sankosh hydroelectric power project. इस बार प्रधानमंत्री की इस 2 दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच कुल 10 सहमति पत्र और समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम यहाँ बहुत व्यस्त है। वन ऑफ द हाइलाइट्स इज कि वो इंडिया एंड भूटान 10 MOU साइन करेंगे एंड ऑल्सो 5 इनॉग्रेशंस होंगे। प्राइम मिनिस्टर रुपए कार्ड का लॉन्च करेंगे एंड इससे बहुत फायदा होगा भारतीय टूरिस्ट को। एंड जो सेकंड फेज होगा रुपए कार्ड का, लाइकवाइज बैंक ऑफ भूटान विल इशू रुपए कार्ड्स टू भूटानीज। इस समय हम द रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में और इस यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, उनके साथ संवाद भी करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी के साथ कई सहमति पत्र सहित समझौते भी हो सकते हैं। We really believe in Modi's leadership in India, and we believe that whole SAARC countries will also benefit out of his leadership. He's really a dynamic leader, and since he was elected as a leader, as a Prime Minister of India, I see very good decisions that has come up in India. भारत के साथ विकास कार्यों की साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का बड़ा पहलू है। भारत ने पिछले साल दिसंबर में भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई थी। इसकी पहली किश्त जारी भी कर दी गई है। भारत के लिए भूटान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, भारत हमेशा से ही भूटान के साथ खड़ा रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी भी है नेबरहुड फर्स्ट, जिसके तहत वो चाहते हैं कि जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है, उसी तेजी के साथ पड़ोसी देश भी विकास के रास्ते पर आगे चलें। कैमरामैन आलोक और अपने सहयोगी विकास गुप्ता के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, भूटान। और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत मठ से करेंगे। क्या कुछ रहेगा पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत में, जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। इस समय हम थिम्पू की सिमतोका जोंग जो मोनेस्ट्री है वहां पर मौजूद हैं। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं और पारो एयरपोर्ट से उतरने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले इसी मोनेस्ट्री पर पहुंचेंगे। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और अंदर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। अगर हम मोनेस्ट्री की बात करें तो 1629 में ये पूरी मोनेस्ट्री बनी थी और भूटान की पहली ऐसी ये मोनेस्ट्री है जो अपने पुराने रूप में मौजूद है, यानी कि अपने वर्तमान रूप में मौजूद है। सबसे पुरानी ऐसी मोनेस्ट्री है। यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मोनेस्ट्री के अंदर जो एक पेड़ है वो भी लगाएंगे। यहाँ पर ये अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो पौधारोपण है उसको भी यहाँ पर करेंगे इस मोनेस्ट्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस मोनेस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मोनेस्ट्री ऐसी मोनेस्ट्री है भूटान के अंदर जिसको कैस्टल जो मोनेस्ट्री है वो भी माना जाता है, यानी कि एक तरह से आक्रमणकारियों से लड़ने में भी इस मोनेस्ट्री की एक बड़ी भूमिका रही थी। और इसके साथ साथ पूरे भूटान को एक देश के रूप में एकत्रित करने के रूप में इस मोनेस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री पारो एयरपोर्ट से उतरने के बाद यहीं पर पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, बुद्ध की मूर्ति के सामने मेडिटेशन करेंगे और इसके अलावा एक वृक्ष भी इस मोनेस्ट्री के अंदर लगाएंगे। कैमरामैन आलोक और अपने सहयोगी विकास के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, भूटान।
और थिम्पू भूटान से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली विदेश यात्रा में भूटान जाना कितना महत्वपूर्ण है और कितना व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद उनका पहला विदेशी दौरा भूटान ही रहा था। 2019 में भी जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जब अपने पद की शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने जो पहली विदेश यात्रा करी थी वो भूटान थी। यहाँ तक कि भूटान के प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और भूटान दोनों के जो संबंध हैं वो कितने घनिष्ठ हैं, कितने गहरे हैं। और आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, 2 दिवसीय दौरा है, कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। राजा के साथ उनकी मुलाकात है, इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। कई सारे जो समझौते हैं वो इस यात्रा के दौरान हो सकते हैं, चाहे हम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को लेकर एक समझौते की बात करें, IT क्षेत्र की बात करें, लॉ क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं खासतौर से रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी है उसको लेकर भी समझौता हो सकता है। जो हमारे तमाम जो विश्वविद्यालय हैं और जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो या सिलचर में हो, तो उनको लेकर समझौता हो सकता है। इसके अलावा कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट भी देखी थी, उस मठ में भी प्रधानमंत्री जाएंगे और वहाँ मेडिटेशन करेंगे बुद्धा की मूर्ति के सामने। और वहीं पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही जो जॉइंट जो कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ पर हो सकती है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रुपे कार्ड को प्रधानमंत्री यहाँ लॉन्च करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारत के लोग हैं वो भूटान आते हैं और भूटान के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में भारत जाते हैं। तो रुपे कार्ड अगर रहेगा तो उनको ट्रांजैक्शन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो डिजिटली कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो भीम ऐप है उसकी भी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री यहाँ से कर सकते हैं। पनबिजली परियोजनाओं के क्षेत्र में भारत बड़ा सहयोगी रहा है और कह सकते हैं कि भूटान की जो आर्थिक जो डिपेंडेंस है वो पनबिजली परियोजना पर बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत को वो पनबिजली परियोजना को भी एक ताबी है। तो दोनों देशों में लंबे समय से कॉपरेशन रहा है, दोनों देशों में लंबे समय से घनिष्ठता रही है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा इस घनिष्ठता को और ज्यादा बढ़ाएगी। नदीम जी बिल्कुल नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। खबरें और भी आप देखते रहिए DD न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी गई। वहां के मुख्य सचिव ने बताया कि 22 में से 12 जिलों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अब तक किसी मौत नहीं हुई है और कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुआ है। Some restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally, with some limited restrictions in 5 of these.
The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए जाएंगे और इस हफ्ते के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। इसके साथ ही कल से श्रीनगर में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल हो जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी फोन शुरू हो जाएगा। Keeping in view the evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. After today's Friday prayers, which the immediate reports have gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. और जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से मौजूद हैं अभिषेक सिंह और जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं मेघना देव। अभिषेक, पहले आपका रुख करेंगे, श्रीनगर में क्या हालात हैं? हालांकि पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं और फोन सेवा भी बहाल हो जाएगी। अभिषेक। बिल्कुल नदीम, जैसे देखिए पिछले कुछ दिनों से जो तपिश थी मौसम की, अब वो मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा होता जा रहा है। वैसे ही जो श्रीनगर की जो हालात है, जो कश्मीर घाटी का जो हालात है, वो काफ़ी तेज़ी से सामान्य होता जा रहा है। स्कूल भी मंडे से खुल रहे हैं, जो संचार व्यवस्था है वो भी आज से जो है वो धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से वो भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर जो एसेंशियल सामान है उनको शुरू से ही उनको सुचारू रूप से बहाल रखा गया, चाहे वो इमरजेंसी सेवा हो, हॉस्पिटल हो, दवाइयों की ज़रूरत हो, उसे कभी भी 24 आवर्स जो है उसे जारी रखा गया। जो फल सब्जी है, अंडा है, मांस, मीट, मुर्गा है, ये सारा चीज़ की जो दुकान है वो रियायती इलाकों में वो खुलने शुरू हो चुके हैं और लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो निकल रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा 12 तारीख को ईद के मौके पे बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांति के माहौल में श्रीनगर में मनाया गया, उसी तरीके से 15 अगस्त को भी जो आसपास के इलाके रहे, श्रीनगर के अलावा गांदरबल हो, बडगाम हो, बारामूला हो, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो है इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में लोगों ने शिरकत किया, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा जो घाटी में जो सामान्य स्थिति है वो लगातार जो है वो उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। नदीम। बिल्कुल अभिषेक, और इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से मेघना। मेघना, जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में तो हालात पहले दिन से ही नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे थे, और अब क्या स्थिति है? क्या पूरी तरह सामान्य हालात हो चुके हैं? अगर हम दफ्तरों की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें, मेघना। जी बिल्कुल नदीम, जो यहाँ पे परिस्थितियाँ थी, जिस तरीके से आपने कहा, पहले दिन से ही परिस्थितियाँ लगभग सामान्य होने की ओर बढ़ रही थी, और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो पाबंदियाँ थी उन पर ढील दी गई थी, और उसके बाद पाबंदियों को धीरे धीरे हटा लिया गया। केवल अभी है जो मोबाइल इंटरनेट है वो अभी तक नहीं, उस पर पाबंदी नहीं हटाई गई है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें सामान्य हैं। स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तर सभी सामान्य रूप से, सुचारू रूप से चल रहे हैं। और मेरे पीछे जो रास्ता है, जो मैं हाईवे है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो मेन इलाका है इस तरफ का, जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से चल रहा है, और जो लोगों की आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है। उसके साथ ही जो यहाँ पास में जो इलाका है, सामने जिस तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, उसी के ठीक पास बस स्टैंड भी मौजूद है, जहां पर जो बसेज हैं, जो पुंछ राजौरी की तरफ जो बसेज जाती हैं, और भी जो बसेज जो पंजाब ट्रांसपोर्ट की बसेज हों या और भी जो बसेज हैं, वो भी सामान्य सुचारू रूप से चल रही हैं। बाकी सभी भी जो सुविधाएं हैं, जो बाग वायर्स दिख रहे थे जब शुरुआत में, जब पाबंदी
पाबंदियां लगी थी उस समय जो रोड के किनारे किनारे जो बाग वायर्स दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीर में भी जब धीरे धीरे जिस तरीके के फेस्ड मैनर में जिस तरीके से पाबंदियां हटाई जा रही हैं, थोड़े समय में जिस तरह से जम्मू में जब हटाई गई थी पाबंदियां तो जम्मू सुचारू रूप से चलने लगा, उसी तरीके से कश्मीर भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कल मुख्य सचिव ने कही कि लोगों का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा इस दौरान। यहाँ के लोगों का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट को बंद करना एक बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो रेडिकल ग्रुप्स है, उनकी तरफ से जो वीडियोस और मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं वो बहुत ही प्रोवोकेटिव और वायलेंट इंस्टिगेट करने वाले होते हैं। तो ऐसे में ये जो पब्लिक का भी समर्थन है वो भी बखूबी यहाँ पर नजर आ रहा है। जी नदीम जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और धीरे धीरे पाबंदियों को हटाया जा रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता बताया था चरणबद्ध तरीके से। इस पूरी जानकारी के लिए मेघना और अभिषेक आप दोनों का शुक्रिया। और बुलेटिन में वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश भर के मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।